الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. معزز سامعین و حاضرین، اذان فجر کی یہ صدائیں پورے بر صغیر پاک و ہند میں کم و بیش نصف گھنٹہ رہنے کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں بسنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یقین رکھنے والے تمام مسلم اپنے شہروں، دیہاتوں، علاقوں میں اپنی مساجد، عبادت گاہوں میں مکمل آزادی کے ساتھ اپنے خالق مالک رب رحمان کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور مکمل آزادی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات اور کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. مگر آج آپ کی توجہ اس اذان فجر کی طرف مطلوب ہے جس کی آواز کو ہندوستان کی حکومت نے 5 اگست 2019 سے مکمل خاموش کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کر دی ہے. یہ آواز ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی آواز، جموں کشمیر کی آواز. وہ جموں کشمیر جس کا رقبہ 2,22,236 کلومیٹر ہے. ندیوں، آبشاروں، پہاڑوں، ڈھل، جھیل، بلکہ پوری دنیا کے سب خوبصورت نظاروں کی سب سے خوبصورت تصویر کشمیر. بھارت کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق جموں کشمیر کی کل آبادی 1,25,41,300 ہے. وادی کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد 95% ہے. وادی کشمیر میں ہندی، ڈوگری، پنجابی، پوٹھوہاری، لداخی، بلتی، اردو اور کشمیری زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں. کشمیر کی تاریخی حیثیت، اس میں موجود قدرت کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ آپ نے کتابوں میں پڑھا یا بزرگوں سے سنا ضرور ہوگا. اس لیے آج آپ کو نہ ہی کشمیر کے بارے بتانا مقصود ہے، نہ ہی 7 دہائیوں سے تحریک آزادی میں لاکھوں شہیدوں غازیوں کی لازوال و بے مثال قربانیاں یاد دلانا مقصد ہے، نہ ان مظلوم و معصوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہندو فوج کے ہاتھوں تار تار ہوتی عزتوں کا نوحہ سنانا ہے، نہ ان نوجوان خوبصورت کشمیریوں کو دکھانا ہے جن کے چہروں پر پیلٹ گنز سے چھرے مار کر چہرے داغدار کرنے کے ساتھ آنکھوں سے بھی اندھا کر دیا جاتا ہے. کئی ان گنت غیر انسانی دردناک واقعات ہیں جو کہ گزشتہ 70 سالوں سے وادی کشمیر میں دیکھے اور سنے جا چکے ہیں. اگر آج آپ کی اور ساری دنیا کی توجہ کی ضرورت ہے تو ان صداؤں کو ضرورت ہے جو فجر سے لے کر عشاء تک وادی کشمیر سے آ رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اس مؤذن کی آذان پر آپ کی توجہ چاہیے جس مؤذن کا سارے عالم اسلام کی امت مسلمہ کی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہی دلی سکون ہے. مگر افسوس آج اس مؤذن کی آذان کے لیے مساجد کے لاؤڈ سپیکرز بند ہیں اور مساجد کو تالے لگا دیے گئے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کو پہلے دن سے اب تک تسلیم ہی نہیں کر پایا اور اس کی شہرک کشمیر کو کاٹنے کی کوشش میں بالآخر 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے 2 یونین میں تقسیم کا اعلان کر چکا. اس کے فوراً بعد کرفیو نافذ کر کے
इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज बंद कर दी और कश्मीर के तमाम बड़े सियासी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में बहारती जबर की नई तारीख रकम हो रही है। मजलूम कश्मीरी अपनी ही जन्नत, अपनी ही वादी और अपने ही घर में कैदी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। 80 लाख निहत्ते कश्मीरी मुसलसल बहारती फौज के तशद्दुद की चक्की में पिस रहे हैं। मासूम बच्चों, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से खुराक, अदवियात न होने के बायस पूरी वादी में मौत के साए मंडला रहे हैं। पाकिस्तान तो उसवाए हसना की तालीम पर अमल करते हुए मोहब्बतों की राहदारियां खोल रहा है। रियासत मदीना की मिसाल कायम करने और पुरअमन होने का मुजाहरा करते हुए भारत के जंगी कैदी, दीगर कैदी, यहाँ तक के पाकिस्तान पर हमला करने वाले पायलट हंसते मुस्कुराते जिंदा इंसानों की सूरत वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत को वापस भेज रहा है। मगर अफसोस, इसी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पाकिस्तान को ताबूत में बंद लाशें भेज रहा है, जिन्हें कभी भारतीय फौज शहीद कर देती है और कभी भारत की जेल में कैदी मुसलमानों को हिंदू कैदी ऐसा बेरहमी से शहीद कर देते हैं कि उनके जिस्म के पूरे आज़ा भी ताबूत में मौजूद नहीं होते। पाकिस्तान ने हर दौर में बहैसियत मुसलमान हौसला, बहादुरी, जुर्रत, दलेरी के साथ साथ आला ज़र्फी की बेशुमार मिसालें कायम की हैं। मगर जमहूरियत और रवादारी के झूठे दावेदार भारत सरकार ने हमेशा कमजर्फी का मुजाहरा किया। कर्फ्यू के बाद अब तक इन्हीं मज़कूरा दिनों के दौरान मसाजिद को मुकम्मल ताले हैं। नमाज जुमा, नमाज ईद पर भी मुकम्मल पाबंदी रही। इन ही दिनों में मुहर्रमुल हराम और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी के जुलूस तक नहीं निकलने दिए गए। इस कर्फ्यू के दौरान वादी कश्मीर के रहने वाले मुश्किलात, दुख, तकलीफ, भूख प्यास से नढाल कैदी होने के बावजूद चट्टान की तरह खड़े होकर एक ही सदा बुलंद करते हैं, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। पूरी दुनिया में हर तरह की तहरीक वालों के लिए कश्मीरियों का अज़्म, हौसला एक अजीम मिसाल है। इन्हीं कर्फ्यू के दिनों में बगैर किसी सहूलत, बिना किसी तैयारी, सर्दी, बारिश, बर्फबारी का मुकाबला एक तरफ, हर रोज कभी 4, कभी 6, कभी दर्जन लाशें वसूल करना और फिर उन लाशों को दफन करने के लिए भारतीय फौज की शेलिंग, छर्रे और सीधी गोलियों की जंग से गुजरना पड़ता है। कर्फ्यू से लेकर अब तक पूरी वादी के हर घर से 15 से 20 साल के नौजवानों को भारतीय फौज ने उठा लिया है और किसी को भी मालूम नहीं किसको कहां ले जाया जा रहा है। सिर्फ उन चंद का ही मालूम होता है जिनको शहीद करके उनकी लाश को घरों के बाहर फेंक दिया जाता है। पहले भारत ये सब कुछ अपनी हॉरर और फाइट एक्शन फिल्मों में दिखाता था, मगर अब ये सब कुछ हकीकत में कर रहा है, क्योंकि उसे ना सिर्फ 80 लाख निहत्ते कश्मीरी मुसलमान मुयस्सर हैं, बल्कि भारतीय फौज के साथ साथ RSS के दहशतगर्द कसाई गुंडे भी मौजूद हैं। भारतीय सरकार ने पूरी वादी में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। जन्नत नजीर वादी में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। मुआसलाती निजाम की बंदिश से कश्मीरियों का पूरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। अशियाए खुर्दोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत है। तालीमी इदारे, तमाम कारोबारी मराकज़, यहाँ तक के हस्पताल भी बंद हैं। जुल्म और जबर की इंतहा हो चुकी। भारतीय फौज जब जिस वक्त चाहती है वादी के किसी भी घर में घुसकर तशद्दुद, कत्लो गारत, मासूम औरतों के पाकीज़ा दुपट्टों को अपने पलीद फौजी बूटों के नीचे रोंद रही है। अगर आज ही कर्फ्यू खत्म हो जाए, तमाम नेटवर्क्स, इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो जाएं, तो सारी दुनिया को वो हकीकत और सच्चाई मालूम होगी कि सबकी आंखें खुली और अक्ल दंग रह जाएगी, इंसानियत शर्माएगी। मगर इन तमाम मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले और तहरीक आज़ादी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि शिमला मुआहदे की रूह को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया।
हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और काविशों से कई दहाइयों के बाद यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में इस मसला पर गौर किया गया और पहली मर्तबा कश्मीर पूरी दुनिया की तवज्जो का बायस बना और पहली ही मर्तबा पूरी दुनिया पर ये बात आया हुई कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, जबकि हमेशा की तरह भारत ने इस मर्तबा भी इस फोरम पर कश्मीरियों की आवाज को दबाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि इस मर्तबा चाइना ने भी इसे अपना मसला समझकर पाकिस्तान के साथ आवाज उठाई। तुर्की, मलेशिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की, मगर वतन अजीज पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान ने बहुत नुमायां किरदार अदा किया। वजीर आज़म पाकिस्तान ने 100% सफीर कश्मीर होने का सबूत दिया। बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा ममालिक के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें करके कश्मीर की हैसियत व अहमियत को नुमायां करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की, उसमें ना सिर्फ कश्मीर की मुकम्मल बात की बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की वो बात कर दी जो आज से पहले कभी ना देखी ना सुनी गई, जिसका एतराफ मुखालिफिन ने भी किया, क्योंकि इस मर्द मुस्लिम वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर का आगाज भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तकरीर के बाद सारी दुनिया पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया में सबसे बड़ा फौजी इलाका बन चुका है। भारत कश्मीरियों की आज़ादी को हमेशा की कैद में बदलना चाहता है। भारतीय फौज और आरएसएस के दहशतगर्दों के हाथों उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि पूरे भारत से मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। आज न सिर्फ भारतीय मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया ने हमारे बानिए पाकिस्तान, बाबाए कौम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिए को तस्लीम कर लिया है। काश बर्रे सगीर के सब मुसलमान उस वक्त बाबाए कौम की इस दूर अंदेशी को समझ पाते, मगर अब भी हम सारी दुनिया के इंसान, मुसलमान, खसूसन पाकिस्तानी, इस दूर अंदेश मुसलमान बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान पर मुकम्मल तवज्जो दें और इस पर अमल कर गुजरें तो जल्द इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बाबाए कौम का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। भारत की मौजूदा हुकूमत जिस तेजी से भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है, अब इसी तेजी से हमने अपनी इस शाहरग को बचाना है। कश्मीर में जो जुल्म जबर हो रहे हैं वो सब तस्वीर, वीडियोस और लफ्जों में बयान करना आसान नहीं, इसलिए हमने तहकीक व तस्दीक से एक कोशिश की है कि आपको वादी कश्मीर ले चलें। तो आइए चलते हैं वादी कश्मीर में, जहां कर्फ्यू के दौरान गुजरे हुए कर्बनाक मनाजिर देखकर आप बे-इख्तियार कहने पर मजबूर हो जाएंगे, जाने कब होंगे कम।